Hello students, good afternoon to you all. This is Arvind Rai from LPM Public School and I am your subject teacher of Social Studies. Students, in today's video, we are going to start our next chapter, that is Urban Livelihoods. This is chapter number 9 of Civics, and this video is for your help to study better at your homes and to do progress in our subject. Now, in this chapter number 9, Urban Livelihoods, the key concepts given in your book is, first of all, I can remind you that it is on page number 287 in your book, and the key concepts of this chapter is what is urban livelihood, migration movement for livelihood, major urban occupations, after that the street area, the market area, the office area. These are the key concepts of this chapter. These are the topics we are going to read in this chapter. Now come to page number 288. The first topic is what is urban livelihood. In this paragraph it is written, urban areas generally refer to cities, especially large ones that are densely populated with highly built out infrastructure. Examples of urban areas are large cities like New Delhi, Mumbai, and Bengaluru. Livelihood, on the other hand, is simply defined as the lifestyle of an individual or what people do for a living. In this paragraph, it is saying that urban areas are generally such cities or areas which are having large and densely populated areas with highly built out infrastructure. मतलब ऐसी एरिया या ऐसे शहर की बात जहाँ पर बहुत ही घनी आबादी निवास करती है और वहाँ पर बहुत ही बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होता है. For example, urban areas are cities like New Delhi, Mumbai, and Bengaluru. After that, livelihood, on the other hand, is simply defined as the lifestyle of an individual or what people do for a living. What does livelihood means? It is simply as defined as lifestyle of a person, or we can say lifestyle of an individual, और what people do for a living. किसी एक इंसान का जो जीवन शैली होता है या उसके जीवन जीने का जो तरीका होता है, that we can say livelihood. Okay, or on the second hand we can say that if a particular person is doing some job or doing some any sort of business or any work for his living, that in that sense it will be called livelihood. Now second topic is migration movement for livelihood. Migration movement for livelihood. In this paragraph, sorry, in this paragraph it is written, many towns and cities grow with time. With the growth of industries and shrinking of agricultural land, millions of people move to cities and towns to seek employment every year. This is called migration. What does migration means? Movement for livelihood. माइग्रेट करना मतलब
किसी एक जगह से जाके दूसरी जगह पर बस जाना अपने लाइवलीहुड के प्रपोजल के लिए, अपने लाइवलीहुड को मेंटेन करने के लिए। जब कोई इंसान एक जगह से जाके दूसरी जगह उस काम की तलाश में बस जाता है अपनी लाइवलीहुड को चलाने के लिए, उसको हम माइग्रेशन कहते हैं। With the growth of industries and shrinking of agricultural land, millions of people move to cities and towns to seek employment every year. This is called migration. जैसे जैसे हमारे देश में इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट हो रहा है और एग्रीकल्चरल जो लैंड है वो श्रिंक हो रहा है, मतलब छोटे पैमाने पर लोग एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इस वजह से बहुत सारे लोग, ऐसे लाखों लोग हैं जो गांव से शहरों की तरफ जाते हैं एम्प्लॉयमेंट के आसार में, कह सकते हैं, इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन सर्च ऑफ एनी जॉब और एनी टाइप ऑफ वर्क विच will help them in their livelihood. Now in this paragraph, first point is written, people who move from one place to another in search of work or shelter are called migrants. जो लोग एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं काम या रहने की वजह से, उनको माइग्रेंट्स कहा जाता है। Some people simply move to seek new opportunities and improve their lives, whereas some are forced to flee due to sudden onset disasters such as flooding, drought or rising sea levels. कुछ लोग नॉर्मल तौर पे किसी नई अपॉर्चुनिटी के तौर पर जाते हैं या अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए जाते हैं दूसरी जगहों पर, बड़े शहरों में जाते हैं, माइग्रेट करते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो फोर्स्ड किए जाते हैं कुछ ऐसे सडन डिजास्टर्स के कारण, जैसे फ्लडिंग हो गया, ड्रॉट हो गया या राइजिंग सी लेवल्स हो गया। फ्लडिंग का मतलब आप लोगों को पता ही है, बाढ़ आना। ड्रॉट का मतलब है सूखा पड़ना। और राइजिंग सी लेवल्स का मतलब है जब समुद्र के जो पानी का जो लेवल है जब वो बढ़ता है। तो ये जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं, इनकी वजह से अगर किसी को माइग्रेट करना पड़ता है तो ये फोर्स्ड माइग्रेशन कहलाता है। मतलब किसी मजबूरी में या किसी कारणवश या किसी नेचुरल डिजास्टर के कारण कोई इंसान मजबूर होता है अपनी जगह को छोड़ने के लिए और दूसरी जगह पर जाके बसने के लिए, तो ये फोर्स्ड माइग्रेशन होता है। और जब इंसान अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को तलाश करने के लिए या किसी जॉब या किसी अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए जब एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करता है तो वो खुद की, कह सकते हैं, सेल्फ माइग्रेशन होता है कि वन पर्सन चूजेस माइग्रेशन फॉर बेटरमेंट ऑफ हिज ओन लाइफ। Now, third point is, so nowadays many people decide to migrate for a better life. इसीलिए आजकल बहुत सारे लोग माइग्रेट करने की जो ऑप्शन होता है उसको चूज करते हैं अपने एक बेटर लाइफ के लिए, सर्वाइवल ऑफ अ बेटर लाइफ। फोर्थ पॉइंट इज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर द मोस्ट कॉमन रीजन ड्यू टू विच पीपल माइग्रेट। जो रोज़गार की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो मौके हैं, उनकी तलाश में कॉमन इंसान जो होता है वो माइग्रेट करता है। ऑफन पीपल आर लर्ड टू माइग्रेट टू अर्बन एरियाज एज अनस्किल्ड डेली वेज अर्नर्स बाय द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन अर्बन एरियाज। और अक्सर जो लोग होते हैं वो माइग्रेट करते हैं अर्बन एरियाज़ में एज अनस्किल्ड डेली वेज अर्नर्स बाय द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन अर्बन एरियाज़। अर्बन एरियाज़ में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स चलते हैं जिसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं, ऑफन अक्सर लोग ऐसे जाते हैं उन शहरों में एक अनस्किल्ड डेली वेज अर्नर्स के तौर पर, मतलब दिहाड़ी मजदूर के तौर पर किसी बड़े प्रोजेक्ट में शामिल होते हैं और अब वहाँ पर जाके प्रतिदिन के हिसाब से वो पैसे अर्न करते हैं। Having moved to the cities, now we are reading fifth point. Having moved to the cities, the migrants generally settle in the poor areas of the city streets. जो लोग ये मूव करते हैं सिटीज़ पे, ये डेली वेज अर्नर्स के तौर पे जो माइग्रेंट्स होते हैं वो जनरली आम तौर पर पुअर एरियाज़ में सेटल डाउन होते हैं उन शहरों में। दीज एरियाज़ यूजली लैक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड ड्रेनेज। इन कोर्स ऑफ टाइम दिस एरियाज़ डेवलप इनटू स्लम्स। और ये एरियाज़ वैसी होती हैं जहाँ पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ की कमी होती है, जैसे बिजली, पानी और ड्रेनेज सिस्टम। इन कोर्स ऑफ टाइम दिस एरियाज़ डेवलप इनटू स्लम्स। और धीरे धीरे ये जो एरिया होती है इनको स्लम एरिया के तौर पर जाना जाने लगता है। नाउ
Next point is the slum dwellers are the urban poor, the daily wage workers, casual laborers, domestic servants, rickshaw pullers, hotel boys, etc. इसीलिए जो स्लम एरियाज़ में जो लोग रहते हैं उनको अर्बन पुअर के तौर पर जाना जाता है, और इस एरिया में रहने वाले जो लोग होते हैं वो डेली वेज वर्कर्स होते हैं, कैजुअल लेबरर्स होते हैं, डोमेस्टिक सर्वेंट्स होते हैं, रिक्शा पुलर्स होते हैं, होटल बॉयज़ होते हैं। ये सारे लोग इस एरियाज़ में रहते हैं। Next point is, at the same time, highly skilled and educated people also move from one city to another in order to get better opportunities. साथ साथ जो हाईली स्किल्ड पीपल हैं, जिनके पास बहुत सारे हुनर हैं, जो लोग पढ़े लिखे हैं, वो भी शहरों की तरफ मूव करते हैं एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हासिल करने के लिए। दे आर मोस्टली वेल पेड टू, और जो हाईली स्किल्ड होते हैं, जो एजुकेटेड होते हैं, उनको पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं। दस मूवमेंट इज़ देयर इन स्किल्ड एंड अनस्किल्ड सेगमेंट। इसीलिए जो मूवमेंट है माइग्रेशन का वो दो लोगों के बीच में है, स्किल्ड और अनस्किल्ड लोगों के बीच में। मतलब आप एक हुनरमंद इंसान हैं या बिना किसी हुनर के तौर पर डेली वेज अर्नर के तौर पर आप जाते हैं, तो दोनों में जो है फ़र्क बड़े पैमाने पर अंतर आ जाता है। देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस इफ़ यू आर अ स्किल्ड professional and unskilled professional. Now next point is, sometimes high officials are placed in rural areas for looking after their projects. We are on this point, this one. Sometimes high officials are placed in rural areas for looking after their projects or industries there, but mostly people tend to move from rural area to urban area in search of a better life and livelihoods. कुछ ऐसे हाई ऑफिशियल्स होते हैं जो रूरल एरियाज़ में उनको रखा जाता है प्रोजेक्ट्स की देखभाल के लिए या इंडस्ट्रीज सेटअप करने के लिए, बट मोस्टली पीपल टेंड टू मूव फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया। लेकिन आमतौर पर जो लोग होते हैं वो गांव के क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में जाना पसंद करते हैं अपने अच्छे जीवन यापन के लिए। माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल एरियाज हैज़ पुट हैवी प्रेशर ऑन द सिविक कम्युनिटीज़ इन द टाउन्स एंड सिटीज़। गाँव के क्षेत्र से जो लोग माइग्रेट करते हैं, शहरों में जाके बसते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, वहाँ की जो सिविक अमेनिटीज़ हैं, जो बेसिक मूलभूत सुविधाएं हैं, उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर आता है, बर्डन आता है। दिस ट्रेंड कैन बी रिवर्स्ड बाय क्रिएटिंग एडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द रूरल पीपल इन द रूरल एरियाज़। और ये जो प्रथा है गाँव से शहरों की तरफ जाने की, माइग्रेट करने की, इसको रिवर्स किया जा सकता है। कैसे रिवर्स किया जा सकता है? जब हम रूरल एरियाज़ में अच्छे अच्छे डेवलपमेंट वर्क्स होंगे, अच्छी अच्छी फैक्ट्रीज सेटअप होंगी, जब गांव के लोगों को गांव के एरिया में ही या आसपास में ही एम्प्लॉयमेंट मिलने लगेगा, तो ये जो सिस्टम है, जो ट्रेंड बना हुआ है गांव से शहरों की तरफ जाके बसने का, वो रिवर्स हो जाएगा। मतलब गांव के लोग जो है अपने घर के आसपास ही काम पाएंगे और गांव में ही रहेंगे, जिससे क्या होगा, जो शहरों की जो सिविक अम्यूनिटीज़ के ऊपर प्रेशर आ रहा है वो कम हो जाएगा। वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर को, सिविक अम्यूनिटीज़ को मेंटेन करने के लिए उसको बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना पड़ेगा। रीजन्स फॉर रूरल टू अर्बन माइग्रेशन आर, नाउ वी आर रीडिंग दिस पॉइंट। रीजन्स फॉर रूरल टू अर्बन माइग्रेशन आर, गांव से शहरों की तरफ माइग्रेट करने के क्या कारण हैं? लैक ऑफ एजुकेशनल एंड हेल्थ अपॉर्चुनिटीज़, जो शिक्षा और जो स्वास्थ्य में जो अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है इन क्षेत्रों में। ओके, लैक ऑफ एजुकेशनल एंड हेल्थ अपॉर्चुनिटीज़, सो दिस इज़ द फर्स्ट रीज़न वाई पीपल माइग्रेट फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज। सेकेंड इज़ लैक ऑफ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। गांव के क्षेत्र में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत हाईली डेवलप्ड नहीं होता है। गांव के क्षेत्र में बहुत बड़े एयरपोर्ट्स नहीं हैं, रेलवे स्टेशंस नहीं हैं, बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ नहीं हैं, मॉल्स नहीं हैं, शॉपिंग मॉल्स नहीं हैं। सो दीज आर द फैक्टर्स एंड दिस इज़ द सेकेंड पॉइंट, दैट लैक ऑफ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ ऑल्सो अ बिग रीज़न to migrate
from rural areas to urban areas. सीजनल एग्रीकल्चर ड्यू टू इरेटिक रेन्स, जो सीजनल एग्रीकल्चर है वो रेन्स के कारण अफेक्ट होता है, जो इरेटिक रेन है तो ये कारण भी है। लैक ऑफ कंसिस्टेंट इनकम थ्रू एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के माध्यम से, चूँकि हमारे जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे जो एग्रीकल्चर है वो रेन के ऊपर डिपेंड होता है, सीजनल रेन्स के ऊपर डिपेंड होता है। तो जिस वजह से क्या होता है कि एक कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती है हमारे गांव के क्षेत्रों में एग्रीकल्चर के माध्यम से। अगर किसान खेती बाड़ी करके अगर पैसे कमाना भी चाहे तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो सीजनल टाइम पे ही वो एग्रीकल्चर कर सकता है, और वो भी अफेक्ट करता है वहाँ के एटमॉस्फेयर, रेन, वहाँ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं। तो एक कंसिस्टेंसी फ्लो नहीं बन पाता है कि साल भर जो है एक किसान की जो आय है वो बराबर मेंटेन रहे। तो ये सारे कारण हैं। फिफ्थ पॉइंट इज़ लैक ऑफ अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर के साथ साथ और भी कुछ अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती गांव में। इस वजह से लोग मजबूर होते हैं गांव से शहरों की तरफ माइग्रेट करने के लिए। सो दीज वर द टॉपिक्स वी स्टडीड टुडे, and I hope that you will revise all these three topics. First one was, I can tick it. First one was, what is urban livelihood? Second was migration movement for livelihood, and third was, sorry, not third topic. These two topics were discussed in this video, and after that, from tomorrow, we will read major urban occupations. After that, the street area and the market area, self-employment, and the office area. So these are the topics left. We will discuss in our next video. Till then, please revise all the topics and be safe at your home and study according to your syllabus and prepare for your upcoming exams. Thank you so much.